بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ سبق میں ہم نے اعراب کی جو 9 شکلیں تھیں ان میں سے اعراب نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا۔ بات پہلے آ چکی ہے کہ اسم کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، معرب اور مبنی۔ مبنی تو ہمیشہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے، مبنی آباشت کے مانند برقرار، لیکن معرب جو ہوتا ہے، معرب آباشت کے گردد بار بار، لیکن جو اس کی گردش ہوتی ہے وہ عامل کے بدلنے کے سبب ہوتی ہے، اور وہ عامل جیسا ہوتا ہے ویسا معرب پر عمل ہوتا ہے اور اعراب بھی ویسا ہی آتا ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ اعراب تو 3 ہی ہوتے ہیں اسم کے، رفع نصب جر، اور فعل کے اعراب بھی 3 ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر رفع نصب کے بعد جر نہیں آتا بلکہ جزم آتا ہے۔ تو اعراب تو 3 ہیں اسم کے، رفع نصب جر، لیکن وہ 3 طریقوں سے آتا ہے، جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی۔ اعراب حرکت کے ذریعے دیا جاتا ہے، اعراب حروف کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور اعراب تقدیری بھی ہوتا ہے کہ جس میں اعراب دیا تو جاتا ہے لیکن اعراب نظر نہیں آتا۔ بہرحال 9 اعراب کی 9 شکلیں ہیں، 9 طریقے سے اعراب دیا جاتا ہے، انہی کو 9 اعراب بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے ہم نے اعراب نمبر 1 کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اعراب نمبر 2 اور اعراب نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ اعراب نمبر 1 تھا حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ، لیکن اعراب نمبر 2 کے اندر حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں کسرہ اور حالت جر میں بھی کسرہ۔ 1 نمبر اعراب اور 2 نمبر اعراب میں یہی فرق ہے کہ حالت نصب میں 1 نمبر اعراب میں فتحہ تھا لیکن یہاں پر کسرہ ہے، اور یہاں پر دوسری یہ بات بھی ہے کہ اعراب بالحرکت ہے، تو اب ضمہ پیش یا 2 پیش کی شکل میں بھی آئے گا، اور کسرہ جو آئے گا وہ بھی زیر یا 2 زیر کی شکل میں آئے گا، لیکن یہاں پر فتحہ 2 زبر کی تنوین نہیں آئے گی۔ اور یہ اعراب نمبر 2 صرف ایک اسم متمکن کو دیا جاتا ہے جسے ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم ہو، مؤنث ہو اور جمع ہو۔ یہ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں ہم اچھی طریقے سے جمع کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کا جو لفظ ہے، جو وزن ہے، جو صیغہ ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے تو وہ سالم ہوگا، اور مؤنث کی ہو تو جمع مؤنث سالم، جیسے مومنتن کی جمع مومنات، کاتبتن کی جمع کاتبات، حافظتن کی جمع حافظات وغیرہ آتی ہے۔ خاص پہچان اس کی یہی ہے کہ اس کے آخر میں لمبی تا ہوتی ہے، جسے تائے مستطیلہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے الف ہوتا ہے، یا پھر قرآن کریم کی رسم الخط کے اعتبار سے کھڑا زبر ہوتا ہے جو الف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے جمع مؤنث سالم کی۔ جمع مؤنث سالم میں لمبی تا تائے مستطیلہ ہوتی ہے اور اس سے پہلے الف ہوتا ہے یا پھر کھڑا زبر ہوتا ہے۔ اب اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ بات گزشتہ کل بھی آئی تھی کہ حالت رفعی کوئی بھی اسم حالت رفعی میں تب ہوگا جب اس سے پہلے عامل رافع ہوگا، اور حالت نصبی تب ہوگا جب اس سے پہلے کوئی عامل ناصب ہوگا، اور حالت جری میں کوئی اسم اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے عامل جار ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے مومنات کی، اذا جاءک المؤمنات۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاء فعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی بن رہی ہے، اور المؤمنات فاعل بن رہا ہے، اور المؤمنات سے پہلے عامل رافع یعنی فعل ہے جو عامل رافع ہے، رفع دے رہا ہے، اور رفع آیا ہے ضمہ کی شکل میں، جیسا کہ مومنات کی تا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومنات کی تا کے اوپر ضمہ ہے، یہ رفع ہے ضمہ کی شکل میں۔
यहाँ पे लफ्ज़ मुमिनात फ़ाइल बन रहा है। अब आगे है इज़ा नकहतुमुल मुमिनात, ये दूसरी मिसाल है, ये हालत नस्बी की मिसाल है। इसमें अल मुमिनात मफ़ऊल बन रहा है। आप देख सकते हैं नकहतुम फ़ेल है और फ़ेल व फ़ाइल है नकहतुम, और अल मुमिनात जो है ये इस यहाँ पर मफ़ऊल बिही बन रहा है नकहतुम फ़ेल का। अब नकहतुम फ़ेल अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है तो वो ज़मीर फ़ाइल बन रही है, और अपने मफ़ऊल को नसब देता है, और ये जमा मुअन्नस सालिम है। तो जमा मुअन्नस सालिम के अंदर एराब में नसब आता है कसरा के ज़रिए। जैसे आप देख सकते हैं एराब नंबर 2 में हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में कसरा। तो नसब आया है कसरे की शक्ल में। ये नहीं कहा जाएगा कि जर है, यहाँ पर जर आया है, यहाँ पर नसब ही आया है, लेकिन नसब की जो शक्ल दी गई है वो कसरा की शक्ल है। तीसरी मिसाल हालत जर्री की, वकुल लिल मुमिनात, और मुमिनात से आप कह दीजिए। यहाँ पर मुमिनात से पहले लाम हरफ जार आप देख सकते हैं, लाम हरफ जार अपने बाद में आने वाले को जर देता है, तो यहाँ पर जर दिया है। अलिफ लाम लगा हुआ है इसलिए तनवीन नहीं आई, वरना दो ज़ेर की तनवीन भी यहाँ पर आ सकती थी। तो यहाँ पर मुमिनात जो है ये मजरूर है लाम हरफ जार की वजह से, और जर मिला है कसरे की शक्ल में। एराब नंबर 2 में ख़ास बात यही है कि हालत नसब में फ़तहा आम तौर पर आना चाहिए, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में अरब वाले इसको ये नहीं कहा जाएगा कि जर देते हैं, बल्कि नसब ही देते हैं, लेकिन कसरे की शक्ल में देते हैं। ये ख़ास बात है जो एराब की शक्लों में तब्दीली होती है। अब आते हैं एराब नंबर 3 पर। एराब नंबर 3 हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा, और हालत जर में फ़तहा। यहाँ पर एराब नंबर 2 और 3 के अंदर ये फ़र्क है कि हालत नसब में और जर में वहाँ पे कसरा था, और एराब नंबर 3 में हालत नसब और जर दोनों में फ़तहा आ रहा है। अब होता जर ही है, लेकिन वो फ़तहे की शक्ल में होता है। नीज़ किस शक्ल में आते हैं, तो ज़म्मा पेश की शक्ल में, फ़तहा ज़बर की शक्ल में आता है। ज़ेर की कसरे की बात यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि कसरा यहाँ पर आता नहीं है। ज़म्मा रफ़ा में हालत रफ़ा में ज़म्मा आता है, और नसब और जर दोनों हालतों में फ़तहा आता है, और वो ज़बर की शक्ल में आता है। उसकी मिसाल हम देख सकते हैं। और एराब नंबर ये 2 सिर्फ इसमें मुतमक्किन की गैर मुनसरिफ वाली किस्म, यानी एक ही इसम को दिया जाता है जिसे हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। और गैर मुनसरिफ के सबक हमने पढ़ लिया है कि गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती, गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता। वो कसरा इसीलिए नहीं आता कि जब जर आने वाला होता है तो जर फतहे की शक्ल में आता है, तो कसरा यहाँ पर नहीं आता है। अब मिसाल कुरान करीम की आप समझ लें। अना यूसुफ़ु, अब यहाँ पर अना मुब्तदा, यूसुफ़ु ख़बर बन रहा है, और यूसुफ़ु को जो रफ़ा दे रहा है वो मुब्तदा है या इब्तिदा है। बहरहाल यूसुफ़ु पर रफ़ा है, और रफ़ा आया है ज़म्मा की शक्ल में। ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, आप यूसुफ़ को कत्ल मत करो। अब यहाँ पर जो यूसुफ़ आ रहा है, जो यूसुफ़ मफ़ूल बिही बन रहा है, इसीलिए मंसूब है, नसब आया है फ़तहा की शक्ल में। जैसे ये तो एक आम सी मिसाल है, इसमें कोई लेकिन दखलू अला यूसुफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अला हरफ जार है, ये अपने बाद में आने वाले को जर देता है। तो आम शक्ल तो यही है कि जर की शक्ल कसरे की शक्ल में आती है, लेकिन यहाँ पर एराब नंबर 3 चूके है, और एराब नंबर 3 में जर दिया जाता है फतहा की शक्ल में, इसीलिए यूसुफा है। ये एराब नंबर 1, 2, 3 हुए। एराब नंबर 1 हालत रफ़ा में ज़म्मा, नसब में फ़तहा, हालत जर में कसरा। एराब नंबर 2 हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में कसरा, और हालत जर में भी कसरा। एराब नंबर 3 है हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा, और हालत जर में भी फ़तहा। ये 3 एराब हुए, और 3 एराब में से एराब नंबर 1 3 इसमों को दिया गया था, और एराब नंबर 2 जमा मुअन्नस सालिम 1 को, और एराब नंबर 3 इसमें गैर मुनसरिफ को दिया जाता है। यानी 16 किस्में थीं अस्माए मुतमक्किना की, उसमें से 5 अस्माए मुतमक्किना हो गए, और 9 एराब थे। 9 एराब में से 3 एराब हो गए, और 3 एराब बिल हरकत थे। अब आगे जो 3 आएंगे वो एराब बिल हरूफ आएंगे। इंशाअल्लाह वो आइंदा सबक में इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।